ordinary girl. She is Sita. Continue the epic journey with Amisha's latest, a thrilling adventure that chronicles the rise of an orphan who became the prime minister and then a goddess. This is the second book in the Ramchandra series, a sequel that takes you back before the beginning. So, all right, I think that only makes me even like more excited. I really want to know how this book will look like, how I will feel after reading this book. So, to tell us more about it, let's call on stage celebrated author Amish, whose unique combination of crackling storytelling, religious symbolism, and profound philosophies made him an overnight publishing phenomenon, with spiritual guru Deepak Chopra hailing his book as archetypal and stirring. His Shiva trilogy became the fastest selling book series in Indian publishing history. Post the success of Shiva trilogy, Amish began writing Sign of Ishkwaku, the first book of the Ramchandra series. And this became the highest selling book of 2015. I think taaliyan banti hai. Thank you so much. So, by an Indian author in the country overall, he has earned many notable accolades for his volume of work and has gained path-breaking records of having over 3.5 million copies in print with gross retail sales of over rupees 100 crores. Today, we have gathered here for the cover launch of Book 2 of Ramchandra series, Sita, Warrior of Mithila. And as well said by renowned film director Shekhar Kapoor, let me call India's first literary pop star, Amish. And now I will like to call somebody really special. I think she needs no introduction, but still, आरजे हैं कुछ तो बोलेंगे ही और अच्छा ही बोलेंगे और मौका वैसे भी कम ही मिल पाता है ऐसे अच्छे लोगों के बारे में अच्छी बातें करने का. So yes, of course, she is our renowned Bollywood actor, producer, columnist, and a former model. But above all, I think she's a great human and doing great work for humanity. As I said, she's actively involved with UNICEF for the Girl, Child, and Direct Anti-Drug Organization. And for those who believes in and lives in 90s, she will always remain our must girl. Please welcome Raveena Tandon. सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला. अभी आपने जो देखा वो बाहुबली 3 का ट्रेलर था. So in Bahubali 3, it's going to be Sita. It's going to be women all the way. What do you say, all the girls? Yeah. Well, रवीना, अगर आपकी बात की जाए तो आपको नेशनल अवार्ड मिला है उस फिल्म के लिए जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है. आजकल आपकी फिल्म मात्र जो है उसकी काफ़ी बातें हो रही है, उसमें भी ऐसे ही सोशल कॉजेज़ जो औरतों से जुड़े उसकी बात हो रही है. ऐसे में आज आप जिस स्टेज पर खड़ी हैं वहाँ पर भी एक ऐसी औरत की बात हो रही है जो इतिहास के पन्नों में सबसे पहली और सबसे बहादुर औरत रही है. तो कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी. एज़ यूजुअल एक और सुपर हिट बुक. एंड जैसे कि मैंने कहा, बुक्स में ये हमारी बाहुबली 3 है. तो अमिश को मैं काफ़ी अभी आई थिंक सालों से बोल सकती हूँ, 1-2 सालों से जानती हूँ. एंड आई थिंक जिस तरीके से इन्होंने रेवोल्यूशनराइज किया इंडियन ऑथर्स को हमारे देश में, तब तक हम शायद ऑलवेज, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, कहीं ना कहीं हम ऑलवेज वी यूज टू आर इंडियन ऑथर्स वर लिटिल लेसर known than what most of us girls would buy, Daniel Steele or Mills and Boons, ये वो फलाना डिमका बहुत होता था. बट जिस तरीके के बुक्स अमिश लेके आए, I mean the trilogy, the Shiva trilogy, I cannot tell you what a revolution it was. It was with Immortals of Meluha, and I cannot begin to express the fan following
that Amish has from that book. It was like a wave, it was like a tidal wave, and मैं जहाँ भी जाती थी तो people were reading this book. यहाँ तक कि मैं आप लोग को एक किस्सा बताऊँ जो मैंने इनको बताया. मैं इनकी तीसरी जो ट्रिलॉजी की थर्ड बुक थी, इट वाज द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास. मैं एक फ्लाइट में थी फ्रॉम लॉस एंजलिस. करेंगे मेरे बाजू वाले सीट में कौन था? इट वाज एल पचिनो. It was Al Pacino next to me, and I went like, and he was like, yeah, hi, and I'm Al Pacino, whatever. And I said, so, I hate introducing myself. मैं ये नहीं बोलना थी हिंदी फिल्म की मैं हीरोइन हूँ, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती हूँ. हाँ, I was very starstruck and everything. And then he asked me, which is this book that you're reading? And I told him, this is Oath of the Vayuputras. It talks about our ancient India and about our history. And yes, there is a bit of fiction, but it's mostly based on facts and records of what we've heard and what we've learned over the years. And when we got down at the airport in London, I made him buy the book. I made him buy Immortals of Meluha and the book. So Al Pacino has his books. And I sent him a snapshot. मैंने अमिश को एक snapshot भेजा. I made him write on the book. And I sent a snapshot to him. I said, see, Al Pacino with your book. So, like I said, it's not only India that has a huge fan following now. Now I can say he has an international fan following. And I'm so proud and honored to be here that Amish thought of me to be a part of this glorious book that I think we are all waiting for, especially all the women in India who feel so strongly, because ancient India had very strong, powerful women. We were free to make our choices, we were free to do what we want, and I hope that era comes back. So I think somewhere he's instilling that Sita in all of us, and long live Ma Sita. That's all I can say. Congratulations. Fantastic. So अमीश की जितनी भी कलेक्शन है आपके घर में, उसमें एक और जो किताब जुड़ने वाली है. I'll request Amish and Ravina.
वाले सवाल वो जो इंटरव्यूज होने वाले हैं उसके लिए बचा के रखे हैं, राइट? मैं पहला सवाल पूछ लेती हूँ, या ओके। रवीना, मैं जैसे ट्विटर पे आपको फॉलो करती हूँ। मेरा हो गया अरे मैं तो हाँ इनसे भी पूछूंगी। ये सवाल जो है वो होते हुए इनकी तरफ ही पहुंचेगा। आपके जो ओपिनियंस हैं, जो आप एकदम खुलकर जो भी लिखती हैं, कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि आपको डर नहीं लगता। तो क्या ऐसी ही सीता आपको लगता है अमीश की सीता वॉरियर ऑफ मिथिला में नजर आएंगी? मैंने किताब नहीं लिखी है, ये तो आपको अमीश से ही पूछना पड़ेगा। ये तो आपके साथ में ही खड़े हैं। इसका जवाब आप दीजिए। मैं प्री रिलीज कॉपी आपको भेज दूंगा मिड में तक, तो तब आप पढ़ के तो फिर ये मुझे आपको देखना जवाब दे पड़ेगा देंगे। मैं तो मैं पढ़ चुकी होंगी। मैं कितनी हूँ सीता में। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ कि हाँ, थोड़ी बहुत निडर हूँ मैं। काफ़ी बार ऐसे भी जो सही चीज़ है और जो वॉट एवर इज़ द राइट थिंग टू डू, आई ट्राई टू डू दैट एज मच एज आई कैन. But I am not the kind who will intentionally want to hurt anyone's feelings. So I keep that definitely in mind. But I do fight for the right thing, and I do fight for justice, probably, yes. But not the way Sita fights. I mean, she's... There's a lovely Sanskrit line which describes exactly what she said. Satyam bruhat, priyam bruhat. Speak the truth, but speak it with love. Exactly. जो प्यार से चीज़ सॉल्व हो सकती है, मुझे लगता है लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकती है। लेकिन जब अपने आप को डिफेंड करने की बात आ जाती है, तो फिर मैदान में घुस जाना चाहिए। And actually, that's what this scene is about. This is actually about the kidnapping of Sita Ma. So she's not someone who's just picked up by one person. There are 100 soldiers who attack her. She's outnumbered, but she's an alpha female. So even when she's outnumbered 100 to 1, she's not defensive. She attacks. She charges. She breaks a few heads. She kills a few. She's outnumbered, so she loses. And hence she's kidnapped. This is actually that scene. She's attacked by 100 Lankan soldiers and she's fighting them. Yes, darling, I was waiting for you. हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। आज तक जो आपने सीता माँ की जो जो कहानियाँ सुनी हैं, आपने रामायण को सीता माँ के नज़रिए से पढ़ा होगा शायद। और रामायण जो शब्द रामायण जी है, वो श्री राम की कहानी है। यन मतलब जर्नी, तो जर्नी ऑफ राम, रामायण का अनुवाद वही है। ये रामायण सीता माँ के नज़रिए से नहीं है, ये सीता माँ की कहानी है, उनके जन्म से उनके अपहरण तक, जिसमें श्री राम एक पात्र हैं जो किताब के लास्ट एक तिहाई में आते हैं। तो ये उनकी कहानी है कि वो कैसी एक योद्धा थी। और हमारे मन में जो छवि है सीता माँ की, वो एक 1980s टीवी सीरियल पर आधारित है ज़्यादातर। लेकिन आप प्राचीन रामायण पढ़ें, अद्भुत रामायण पढ़ें, उसमें वो योद्धा थी। रावण का वध सीता माँ ने किया था, श्री राम ने नहीं, अद्भुत रामायण में। मैं आपसे यही पूछी हूँ कि अभी तक राम की कहानी सुनाई जाती थी, अब वक्त आया जब सीता की कहानी सुनाई जा रही है। सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है आज के भारत में। और हमारे प्राचीन स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है, जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, उस देश को भगवान भी त्याग देते हैं। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। हमारे एंशिएंट कल्चर को रिवाइव करने की ज़रूरत है। आपने रवीना से क्यों कवर लॉन्च करवाया? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, सक्सेसफुल वुमन है। और मैं इस किताब में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मैं सब इवेंट्स एक स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल वुमेन के साथ ही कर रहा हूँ। तो जो अनाउंसमेंट हुआ था किताब का, वो स्मृति ईरानी जी के साथ हुआ था। कवर लॉन्च रवीना टंडन जी के साथ हो रहा है। और आप आगे की भी जो इवेंट्स देखेंगे, वो सब मतलब ऐसे ही इवेंट्स होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? बट मतलब मैं एक मर्द तो रहूँगा। मैं लेखक हूँ तो। So sweet. Any other Thank you so question? much everybody for being here this evening. And हाँ जी, आ गए? सीता के बारे में जैसे बताया सर ने कि जी हाँ, आपकी राकेश। परसेप्शन बदली है सीता को लेकर कि योद्धा थी। सर ने कहा कि वो 1980s के सीरियल की तरह दिखाया है, लेकिन ये बुक में योद्धा दिखाया उन्हें, तो कुछ परसेप्शन बदली है आपकी सीता को लेकर?
देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये मुझे ऑलवेज एक जानकारी थी कि जो हमारी औरतें थी, जो एंशियंट इंडिया की औरतें थी, काफ़ी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी भी हुआ करता था। एंड जहाँ के औरतों को फ्रीडम था, न कुछ ऐसा पर्दा सिस्टम था, न कुछ ऐसे था कि आप औरत हैं तो आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आपने अगर हमारी हिस्ट्री पढ़ी है, हमारी बहुत बुलंद रानियां रह चुकी हैं जो जुनून लेके योद्धा भी होती थी। तो वो हमारा एंशियंट इंडिया था। कहीं ना कहीं वो कुछ परसेप्शन बदलता गया अबाउट इंडियन विमेन। एंड जैसे कि आमिश ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी औरतें रहती थी और जहाँ हमारी जैसे लिनिएज जिसको बोलते हैं, जो एक नस्ल चलती आ रही है, उस नस्ल को वापस और हमारी औरतों को वापस उस मुकाम पर लाना जहाँ आदर, रिस्पेक्ट और उनको उनके राइट्स दिए जाएं। तो फॉर मी सीता जहाँ तक कि मेरे समझ में थी, अंत में भी उन्होंने कभी अपनी खुददारी नहीं खोई। आप अगर पूरा पढ़ें तो जिस रूप में अमिश उनको ला रहा है, वो बहुत ही इट्स अ रेवलेशन एक्चुअली। शायद नॉट फॉर पीपल लाइक मी, जिनको ऑलरेडी मुझे ऑलवेज Favorite moments of my life, actually. Which is your son's favorite book? Like, which Right you now, have written? Yeah. no, he can't read my books right now because there's some violence and he's only 8 years old. But Harry Potter? Yeah. Can I say Harry Potter? Okay, he's finished Harry Potter already. He reads a lot. Both his mother and father, we both read a lot, so he also reads a lot. He's a very smart kid. Self-published. All right, so I think Sir, actually, I want to thank you. Means I was never interested in this kind of fiction, but because of you, you made history more interesting. And I also wanted to ask, means after Ramchandra series, we thought you will be progressing forwards or taking. But what was your inspiration, means for writing about Sita? And do you think in present scenario that women have means not lost, but they are not that powerful which they were before, and you have projected her as a muscular and a And a athletic strong woman. yes, And strong woman, I not agree only with you. physically but also mentally. I agree with you entirely. And as Ravina said earlier, this is something that we need to learn. In ancient times, we actually had a far more equal society. And how can a society progress if half of that society is not allowed to contribute? So मतलब आप एक पाँव काट दो तो चलोगे कैसे, भागोगे कैसे? So this is something very crucial, and Sita Ma is a role model for many of us. So seeing her as not just physically strong but a mentally strong, tough woman, I think is an important movement to have. And I'm trying to make my own small contribution to it. She's made wonderful contributions to it with her movie, with Matra, with so many other movies that she's done. And I think all of us need to play our role in this. This is a very important movement. I think we all should congratulate Amish for this wonderful book and this wonderful cover. I'm sure आप सभी को ये अपनी इस And if we are ending, if I may, I want to thank Ravina. Thank you so much for coming here and gracing this occasion. Really made this event that much more special. And I should also thank the agencies who have designed this cover, this wonderful piece of work. That's Sideways out there. Abhijit, raise your hand. And Abhijit and team. And Arthat out there. These are the two geniuses who've actually put this together. Absolutely brilliant work. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. a huge success.
आई थिंक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आमिश की फ़ैन रह चुकी हूँ। इनकी जो इनकी जो लिखी हुई किताबें हैं मेरे कलेक्शन में ज़रूर हैं और मैं इनकी बुक्स पढ़ती हूँ। और जैसे कि मैंने शुरुआत की और मैंने कहा मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अपने बुक्स पेश किए हैं हमारी इंडियन जनता को एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी जैसे बात जैसे कहेंगे कि जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि पहले तो हम सिर्फ ऐसी किताबें पढ़ते थे मोस्टली जो इंडियन ऑथर नहीं इतने फेमस होते थे, लेकिन आमिश ने वो पूरा एक जैसे पूरा चेंज कर लिया है वो नोशन। एंड आज इनकी किताबें इतनी वाइडली पढ़ी जाती हैं। उसके अलावा इन्होंने जो हमारी हिस्ट्री थी, जो हमारा एंशियंट पीरियड था, जिससे हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे थे और कहीं ना कहीं जो आज भी आप अगर काफ़ी टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए हिस्ट्री लिख के गए थे वही हम पढ़ रहे हैं और वही हम सीख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पूरा हमारा पास जो हमारी हिस्ट्री रह चुकी है, जो हमारा एंशियंट कल्चर हेरिटेज रह चुका है, जिस तरीके से इन्होंने पेश किया, आई थिंक मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान ने कैसे इनको एक्सेप्ट किया है और कितनी इनकी बुक्स पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे आग जैसे फैला देती हैं इनकी बुक्स, उस तरीके से उनकी बुक्स बिकती हैं। सो आई एम वेरी ऑनर्ड टुडे कि आज इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है सीता, विच जहाँ आप जैसे खुद आमिश के लफ्ज़ों ने इन्होंने कहा कि सीता एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं दब गई थी, छुप गई थी। ज़्यादातर रामायण में जब होलिस्टिकली बात करते हैं तो सिर्फ वही एक कहानी चलती आ रही है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की कहानी क्या थी और वो कैसे बने जो और उनके ऊपर क्या गुजरी, वो एक एक को उभर के ला रहे हैं। आई एम सो प्राउड कि आज इन्होंने सीता के ऊपर लिखी है। अभी इनको पहले बोल रहे थे। हाँ, जैसे आपने जिक्र किया है सीता जी के बारे में बहुत लीडर हैं और इसलिए आपने रवीना को चूज़ किया आपके और फोटो के लिए या इसकी दूसरी कोई और बताइए। नहीं, आपका जो सवाल है जवाब उसमें ही है। आप सही कह रहे हैं। ये इस किताब में जो भी इवेंट्स हुए हैं मैं सिर्फ महिलाओं के साथ इवेंट लॉन्च कर रहा हूँ और ऐसी महिलाएं जो स्ट्रांग हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिन्हें खुद अपना मुकाम बनाया है। तो इस किताब की जो अनाउंसमेंट थी टाइटल की, वो मैंने स्मृति ईरानी जी के साथ की थी और कवर लॉन्च मैं रवीना जी के साथ कर रहा हूँ। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। इनने हम लोग ट्विटर में बातचीत हुई थी हमारी। इनने मेरी एक किताब पढ़ी थी और मुझे कांटेक्ट किया था। तो हर इवेंट में एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल महिला के साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक ये रोल मॉडल्स हमें देश के सामने और प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी जो देश में जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इन रोल मॉडल से प्रोत्साहित हों, इंस्पायर हों और खुद भी आगे बढ़ें और देश को भी आगे लेके जाएं। फाइनली मतलब रवीना जी ने कही दिया कि वो प्रोड्यूसर बनेगी, उन्होंने कही दिया कि अगर मूवी बनेगी तो प्रोड्यूस करना चाहिए और ए फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चलो। जैसे कि मैंने कहा, बाहुबली का थर्ड है ये। बाहुबली 3 ऐसे बनेगी एक महिला के साथ। जैसे रवीना जी आपने कहा है कि आप मतलब आप हमेशा आप उनके बात करते हैं, तो अभी मैं जानना चाहूँगा ये सरकार कौन आगे जा रहा है। मैंने स्ट्रिक्टली हम लोग को बोला, मैंने कहा मना किया था, मेरे ऊपर डाल रही है, मैं तो निडर बोलती हूँ। मुझे ही बोला था, बुक के अलावा प्लीज़ मैम कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा, मात्रा काफ़ी अच्छा। भारतीय सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, देखिए क्या कहना चाहेंगे, कोई नया इनिशिएटिव आपके हिसाब से काहे का इनिशिएटिव? कोई नया इनिशिएटिव भारतीय सरकार को लेना 3 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार में 26 में, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी किताब के बारे में ही मैं सब आई थिंक ये समय पे किताब के ऊपर भी बातचीत हो तो शायद बेहतर होगा। ये आप एक शायद दूसरे मौके पे पूछ लें तो बेहतर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मात्रा काफ़ी अच्छा कर रही है तो उसको लेकर कितना प्राउड फील करते हैं, लेकिन स्क्रीन्स काफ़ी कम मिली थी मात्रा को। जी हाँ, स्क्रीन्स कम मिली थी, लेकिन बाहुबली के आने के अलावा अभी तक मात्रा चल रही है। जो दूसरी पिक्चरें नहीं चल रही हैं, मात्रा अभी भी लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोने में टिकी हुई है। तो आई थिंक देखिए, ऐसी फिल्म जो सोशल मैसेजेस वगैरह के साथ हैं, वो इतनी भी चल लेती हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो वो अपने आप में ही एक सक्सेस है।
एंड जैसे कि मैं लोगों को बोलती हूँ, एक दो ही पिक्चरें चल रही हैं आजकल थिएटर, एक बाहुबली और एक मात्र। तो ये अच्छा है, जैसे मैं लोगों को एक और चीज़ बोलती हूँ, गलत मत समझिएगा, लेकिन इस समय 5 उंगलियां घी में हैं, क्योंकि मात्र भी मेरी है और बाहुबली भी मेरी है, सो आई कैन नॉट रियली डिफ्रेंशिएट के यू नो, सो इट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड कि मात्र टिकी हुई है विद अ फिल्म लाइक बाहुबली। बट या इट्स मैं ऑडियंस को और जो आप लोग जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की है मात्र के लिए और ऐसे एक सोशल मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद करना चाहती हूँ। यू नो रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप मेरे ट्विटर लाइन पे जाइए, मैं रोज़ एक किसी रिव्यूअर को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी रिव्यूज़ आए हैं और बहुत तारीफ़ हो रही है फिल्म की। तो आप मेरे टाइम लाइन पर जाइए तो आप सब देखेंगे, चाहे वो डेक्कन क्रॉनिकल हो, टेलीग्राफ हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, मुंबई मिरर हो, एवरीवन्स लव द फिल्म। हाँ, यू कैन नॉट विन देम ऑल, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं अच्छी लगी, लेकिन यू कांट प्लीज़ देम ऑल। तो इट्स फाइन, वो 2-3 ऐसे खराब रिव्यूज़ आते हैं जिनको नहीं अच्छी लगी, शायद मैं उनके टाइप की पिक्चर नेक्स्ट टाइम करूँगी, उनको अच्छी लगेगी, और फिर दूसरे 10 हैं उनको नहीं अच्छी लगेगी, तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।